Hello friends. Okay, in this class we will continue with the graphical method. Okay, in the last class there was an introduction. Okay, hope that you understand how to solve using graphical method. Okay, you know that in graphical method the most important thing is to make the table. Okay, once you understand how to make the table, okay, then it will become easy to make the graph. Okay, here the question is complete the following table to draw graph of the equation. Now look, here it is complete the following table to draw. Whenever it is coming like this, that is to draw, okay, like this. Okay, no need to draw the graph. Okay, draw the graph then only. Okay, if it is infinitive, that is, so to draw the graph you must have to understand that we have to just make the table. Okay, no need of drawing the graph. Okay, so here look, here it is x plus y is equal to 3. Okay, now x, the value, first the x, the value is given. Now here it is, you know that x is equal to what it is, 3 given. We have to find the value of y. What you have to do? So the equation is x plus y, okay, is equal to 3. Okay, so in the place of x we are putting 3. So 3 plus y is equal to 3. So y is equal to, what will come? 3 minus 3, okay, is equal to, what it is, 0. Okay, so when if x is equal to 3, y is equal to 0. Okay, so here you can see it is 0. Okay, like this you have to make the table. Okay, the next one is, okay, what it is here, y is given that 5, correct? Y is given that 5. Okay, if y is given 5, then what you have to, again you have to do in this x plus y, okay, x plus y is equal to 3. Okay, what we are going to put in the place of y, we are going to put 5. So 5, x plus 5 is equal to 3. Okay, so x is equal to, what did it become? 3 minus 5. Plus 5 when going to the other side, it is minus 5. So which is equal to minus 2. Sure? Okay, then the next one. Okay, so when here what it will come? Minus 2 will come, correct? Look here, it is of minus 2. Okay, now when y is equal to 3, now again it is of x plus, okay, y is equal to 3 it is, okay, y is equal to 3. So x plus y is equal to 3. Okay, so x plus, in the place of y what we are putting? 3 we are putting. Okay, so here 3 is equal to 3. So x is equal to 3 minus 3 is equal to 0. So here it will come 0. Understand? And here also what you will write? Minus 2 comma 5. Okay, so these are the answer like this. Here the same. So you have to make the table like this. You have to, okay, answer, you have to make the table like this. Understand? Okay, now the next table. Okay, next table, it is what it is given that, okay, equation is x minus y is equal to 4. Now here given that y is equal to, what is y is equal to? 0. Okay, so x minus y is equal to 4, correct? Okay, so in the place of y we are putting 0 is equal to 4, correct? So x minus 0 is x only, so x is equal to 4. Okay, so what you will get here it will 4. So here it is 4 comma 0. That is very important. Look here 4 and here 4 comma 0. Okay, and the other is, okay, x is equal to minus 1. X is equal to minus 1. So here it is x minus y is equal to 4, correct? So minus 1 minus y is equal to 4. So minus y is equal to 4 plus 1 is equal to, what we can say, minus y is equal to 5. So y is equal to minus 5. Sure? So y is equal to minus 5. Here it is minus 5. So what you will write here? Minus 1 comma minus 5. Look, here it is minus 1 minus 5. Then you have to write minus. Okay. Now the next is, okay, what it is given? Yeah, over. Now there it is, the table is complete. So this much only you have to do. Understand? Okay, like that you have to, okay, here what to complete the following. Okay, it may come for the fill-ups, 1 mark, even 2 marks it will come. Understand?
Okay, there no need to draw the graph. Okay, only that is to draw the graph. It means that okay, complete the following table to draw the graph. That means you need not to draw the graph. Okay, only you have to fill the table. Sometimes they will make a table to draw the graph like that also. Okay, so it's a sure question. Okay, so please do. Okay, we'll move to the other. Yes. Now here look, solve the following simultaneous equation graphically. Now here you have to do it graphically. Okay, so graphically means first what you have to do is you have to make the table. Okay, that is very important. Okay, so here how to make the table? Okay, that already we studied. Okay, here one practice normally is we are at that time also I told that okay we are arbitrary value we are giving to x, that is अपना मर्जी का वैल्यू क्या कर रहा है x को दे रहा है, फिर करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू क्या कर रहा है फाइंड कर रहा है. तो अपन कभी भी ये x का वैल्यू देने का टाइम क्या सोचना चाहिए, अपना रेंज देखना चाहिए. अभी अपना ग्राफ में समझो 10 तक बैठेगा, ओके अप टू 10 बैठेगा, तो क्या होना चाहिए ये 10 जो है ओके 10 का बाहर नहीं जाना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए. ओके वो हिसाब से अपन को वैल्यू को ढूंढना. ओके सो इट इज फर्स्ट देखो इट इज ऑफ एक्स, फर्स्ट इक्वेशन इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6. अगर x प्लस है तो नॉर्मली अपन x का वैल्यू डाल के y फाइंड कर रहे हैं, इसलिए इसको कैसा लिख सकते हैं, सो y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स. तो सब्सटीट्यूशन थोड़ा इजी हो जाएगा, इसलिए ऐसा लिख रहे हैं. कैसा लिखना जरूरी है क्या, तो नहीं लिखा तो भी चलेगा, मगर नॉर्मली इट इज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस. तो अभी x का जगह पे अभी x का जगह पे क्या डाल रहा है, फर्स्ट जो है ओके 0 डाला. ओके तो नॉर्मली वैसा ही डालते हैं 0, जो मतलब डायरेक्ट जो छोटा छोटा मिलते हैं वो हिसाब से अपन सोच के लिखते हैं. सो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा 6 माइनस 0, करेक्ट. 6 माइनस 0 इज इक्वल टू क्या आएगा 6 ओनली. अंडरस्टैंड, देखा लाइक दिस हियर. ओके टेबल बन गया, साथ में ऐसा टेबल बनाने का, टेबल में ऐसा ये लिखते जाने का. ओके तो दूसरा जो है अभी x का जगह पे क्या डाल रहा है 6 डाल रहा है. सो दैट y इज इक्वल टू ओके क्या आएगा x, इधर x का जगह पे इधर क्या आएगा 6 आएगा. सो 6 माइनस 6, व्हाट इज 6 माइनस 6 इज 0. अंडरस्टैंड, सो 6 0 आ गया. ओके दूसरा जो है ओके x का जगह पे क्या डाला 3 डाला. ओके तो x का जगह पे 3 डाला तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 6 माइनस 3, क्या आता 3 आता है. अंडरस्टैंड, सो दैट है ये आ गया. ओके दूसरा जो है x का जगह पे क्या डाल रहा है 4 डाल रहा है. नॉर्मली 3 इज ऑल्सो इनफ. ओके फिर भी अपन तो प्रैक्टिस के हिसाब से अपन पहले अभी 4 दिया इसलिए 4 यूज कर. ओके सो 4, सो y इज इक्वल टू 6 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आया, सो इधर 4,2 आया. समझ में आया. ओके अभी ये x का वैल्यू ये सब किधर से मिला बोला, या तो किधर से भी नहीं, अपना मर्जी का हिसाब से डाला है. अंडरस्टैंड. ओके अगर आपको चाहिए तो दूसरा वैल्यू भी डाल सकते हो, बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि रेंज का जो ध्यान रखना चाहिए, मतलब एकदम बड़ा वैल्यू नहीं मिलना चाहिए, मतलब डालना भी नहीं चाहिए. ओके सो द नेक्स्ट वन इज ऑफ दूसरा क्या है ओके y माइनस एक्स माइनस वाई. देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. ओके ओके देयरफॉर अभी देखो ये जो माइनस वाई है तो उसको उधर लेके जाएंगे. सो क्या लिखेगा x माइनस 4 को ए बाजू लेके इज इक्वल टू वाई, ऐसा लिख सकता. तो इसको कैसा लिख सकते, सो y इज इक्वल टू क्या आएगा x माइनस 4. समझ में आया. तो अभी वापस सेम प्रोसीजर. ओके पहला x का जगह पे क्या डाला 0 डाल रहा है. ओके नॉर्मली एक वैल्यू 0 अपन डालता ही है. सो दैट y इज इक्वल टू क्या मिलेगा ओके 0 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 4. अंडरस्टैंड. ओके देखा माइनस 4. ओके दूसरा जो है x का जगह पे क्या डाल रहा है 4 डाल रहा है. ओके सो दैट इधर क्या मिलेगा y इज इक्वल टू 4 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा. ओके 4 0 मिला.
ओके दूसरा ओके एक्स का जगह पे क्या डाल रहे हैं 2 डाल रहे हैं, सो वाई इज इक्वल टू क्या आएगा 2 - 4, 2 - 4 बोलेगा तो -2, सब्ट्रैक्ट करके बड़ा नंबर का साइन मिला। दूसरा जो है एक्स का जगह पे क्या डाल रहा है 5 डाल रहा है, सो दैट वाई इज इक्वल टू क्या आएगा 5 - 4 क्या है 1, सो दैट टेबल है समझ में। ओके लाइक दैट टेबल। तो ये टेबल बन गया। तो देखो नॉर्मली जो ग्राफ है वो 4 मार्क का आएगा, ये तो 5 मार्क का है, अंडरस्टैंड। तो अभी समझो आपको एक 5 मार्क का है, ओके 5 मार्क का रहेगा तो 2 मार्क्स जो है टेबल के लिए रहेगा, अंडरस्टैंड। ये टेबल खाली बनाया तो भी आपको 2 मार्क्स मिलेगा। 3 मार्क्स में अभी जो 1 मार्क जो है अभी ग्राफ बना लिया, ओके तो अभी 1 मार्क जो है अपन देखा स्केल को होगा, तो ये स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना, ओके दैट इज सेम है, सब में सेम लिखना है आपको। क्या है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ द एक्सिस, और सब में सेम लिखना है, ओके इसके लिए 1 मार्क। और 2 मार्क जो है ग्राफ बनाने का। अभी ग्राफ बनाने के लिए आपको समझा, लास्ट क्लास में अपन ने देखा था, ओके हियर इट इज देखा। फर्स्ट जो है 0 6, 0 मीन्स एक्स एक्सिस में 0, वाई एक्सिस में 6 है, तो किधर आएगा देखा इधर आएगा, ठीक है। तो ऐसा जो पॉइंट ऐसा आपको डॉट डालना, मैंने इसलिए रेडीमेड यूज़ किया, तो मैं बनाएगा तो आपको थोड़ा मतलब बराबर समझने में दिक्कत रहेगा करके, ओके। नो नेक्स्ट जो है इट इज 6 और 0, ओके अगेन इट इज एक्स एक्सिस में 6, देखा एक्स एक्सिस में 6 और 0 ये एक्सिस में आ गया, ओके तो कभी भी यू नो दैट अगर देखो 0 6, ओके 0 6 मीन्स ओके इधर क्या है, ये जो एक्स एक्सिस 0 है, ओके वाई एक्सिस का जो है वाई कोऑर्डिनेट 6 है, तो इसका मतलब ये किधर आएगा, इट विल बी ऑन द एक्स एक्सिस, ओ सॉरी वाई एक्सिस, ओके इट विल बी ऑन द वाई एक्सिस लाइक दैट 6, 0। अभी इधर देखो ये जो x कोऑर्डिनेट 6 है, y कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, तो ये कौन सा इसमें आएगा, ये आएगा x एक्सिस में, समझा x एक्सिस में 6 में आएगा, ये y एक्सिस में 6 में आएगा, श्योर। अभी दूसरा जो है 3 3 देखा, मतलब x एक्सिस में 3 और y एक्सिस का भी 3, ओके। दूसरा जो है 4 2, दैट इज x एक्सिस का 4, ओके और वाई एक्सिस से 3 देखा, लाइक दैट आपको ये करके बना। फिर आप स्ट्रेट लाइन, ओके अंडरस्टैंड, सो दैट इट इज किधर ऊपर क्या लिखना है आपको उधर इक्वेशन लिखना है x + y = 6 का, श्योर। वही लाइक दैट सेकेंड इसका भी वैसा ही आपको करना है। इधर क्या है 0, 4, 0, 4 मीन्स वाई एक्सिस में -4 इधर आया, फिर 4, 0, ओके दैट इज एक्स एक्सिस में 4, समझा, ऐसे याद रखना इजी है। फिर 2 - 2 देखा, 2 एक्स एक्सिस में 2 और वाई एक्सिस का -2, ओके। दूसरा जो है 5 1, ओके 5, ओके एक्स एक्सिस का 5 और वाई एक्सिस का 1, ओके इट इज लाइक इधर आया, तो इसको ज्वाइन किया। तो अभी देखो आप अभी इसका जिधर भी इंटरसेक्ट हो रहा है, ओके दैट इज द, ओके जिधर भी इंटरसेक्ट हो रहा है दैट इज द सॉल्यूशन। तो अभी ये इधर इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इंटरसेक्ट किधर हो रहा है, उसका x कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट क्या है y, 1 इज द कोऑर्डिनेट, सो द 2 लाइन देखा, द 2 लाइंस इंटरसेक्ट एट द पॉइंट 5, 1, अंडरस्टैंड, ओके सो दैट ओके वी कैन से दैट ओके दिख रहा है 5, 1, ओके तो ये 5, 1 जो है, ओके दैट इज द सॉल्यूशन। So x is equal to 5 and y is equal to 1 is the solution of the okay is the solution of the symmetry। ये फाइनल आंसर आपको क्या करना है, ऐसा इसका फाइनल आंसर लिखना है, श्योर समझ में आया, ओके बना सकते हो, ओके लाइक दैट। आपको दूसरा भी ओके इधर भी देखो इक्वेशंस बहुत इजी है, सो दैट आपको क्या कर सकता, ये जो ग्राफ बनाने के लिए भी इजी है, मतलब टेबल बनाने के लिए इजी है। तो इधर देखिए, तो इट इज ऑफ x
प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ओके, तो अपन को वैल्यू में इसको y इज इक्वल टू फॉर्मेट में लिखना है, तो x को बाजू लेके आए तो एक्स वाई माइनस ओके x। समझ में आया? तो इधर वापस अभी वैल्यू डाल रहे हैं। देखो अभी ये कर सकते हैं आप लोग। ओके, मतलब x का जगह पे 0 डाला तो 5 मिलेगा, x का जगह पे 5 डाला तो 5 माइनस 5 0 मिला। वो आपको करना है। ओके, डायरेक्ट नहीं लिखना है। ओके, देन इधर इट इज 2 डाला। ओके, इधर 2 डाला तो 5 माइनस 2 3 आ गया। ओके, और इधर 3 डाला तो 5 माइनस 3 2 आ गया, बराबर। तो टेबल बन गया। अभी दूसरा इधर भी x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अभी माइनस वाई है तो उसको उधर लेके जाओ, 3 को इधर, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस वाई क्या हो जाएगा माइनस वाई। तो उसको अपन कैसा लिख सकता है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। समझा? फिर उसके बाद वैल्यू डाल रहा है। अभी x का जगह पे 0 डाल रहा है तो माइनस 3। ओके, y का फिर क्या है, x का जगह पे 3 जो है वो ही डाल रहा है। समझा? इधर 3 है करके वो 3 इधर डाल रहा है। ओके, सो दैट इट इज 3 माइनस 3 0। ओके, फिर 2 डाल रहा है, 2 माइनस 1 इट इज 2 माइनस 3 माइनस 1। ओके, फिर 1 डाल रहा है तो 1 माइनस 3 इज माइनस 2। समझा? वैसा आपको ये सब लिखना है। ओके, फिर इसका ग्राफ बनाएंगे। ओके, ग्राफ बनाएगा अभी आप। ओके, ये दोनों ग्राफ अभी किधर इंटरसेक्ट हो गया, फॉरवर्ड में इंटरसेक्ट हो गया, बराबर। सो द टू लाइन इंटरसेक्टेड एट द पॉइंट फॉरवर्ड, सो दैट दिस इज द ओके सॉल्यूशन ऑफ द। ये फाइनल आंसर आपको क्या करना है, लिखना है। समझ में आया? ऐसा ग्राफ का ओके, ग्राफ ऐसा लाइन बना के आपको ऊपर है इक्वेशन देगा, ये जो इक्वेशन ऐसा लिखना है तो समझेगा कि ये कौन सा लाइन किन से इक्वेशन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा जो है तो इधर भी देखो, इधर भी x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है 0। अभी सो y इज इक्वल टू माइनस एक्स। अभी इट इज वेरी इजी, जो भी y का x का वैल्यू डालेगा उसका माइनस डाल के y का आएगा। तो अगर इधर 1 दिया तो ये माइनस 1 आएगा। तो इधर देखो 0 दिया तो 0 ओनली, क्योंकि 0 को कुछ वैल्यू नहीं है, माइनस नहीं आता है। तो नेक्स्ट 2 दिया तो x को 2 दिया तो माइनस 2 देखा। ओके, और x को माइनस 2 दिया तो ये माइनस ऑफ माइनस देखा, इट इज माइनस 2, माइनस इंटू माइनस प्लस, ऐसा 2 हो जाता है। ओके, ऐसा 1 दिया तो y इज इक्वल टू ओके क्या आएगा, माइनस ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस 1, मतलब ऑपोजिट हो जाएगा। माइनस का रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस आएगा। अंडरस्टैंड? ओके, दूसरे जो है ओके इट इज 2x ओके माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ओके, अगेन माइनस वाई को उधर लेके जा रहे हैं तो 2x माइनस 9 इज इक्वल टू वाई। सो y इज इक्वल टू क्या आएगा 2x माइनस 9। अभी x का वैल्यू डाल के फाइन तो 0, पहले क्या दे, नॉर्मली अपन को पता है x का वैल्यू को 0 डालते हैं, तो इधर 0 डाला तो माइनस 9 मिला देखा। ओके, दूसरा जो है क्या डाला 2 डाला। ओके, 2 डाला तो इट इज 4 माइनस देखा, 2 डाला तो इधर इट इज इक्वल टू 2x। अगर x इज इक्वल टू 2 रहेगा तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2 इंटू 2 इज माइनस 4। ओके, सो दैट विच इज इक्वल टू 4 माइनस 9। ओके, इज इक्वल टू 4 माइनस 9 इज 5 माइनस 5। ओके, ऐसा जो है समझा, ऐसा सब फाइन करना है। दूसरा 5 डाला, देखो y इज इक्वल टू 2 इंटू 5 माइनस 9, दैट इज 10 माइनस 9 इज इक्वल टू क्या आएगा 1 आएगा। अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट इज ओके x इज इक्वल टू ओके x इज इक्वल टू 4 डाला तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 2 इंटू 4 माइनस 9 इज इक्वल टू 8 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 1। समझ में आया? तो लाइक दैट अपन क्या किया, ये सब किया। श्योर? ओके, देन द नेक्स्ट इज टेबल बनाने का, जो ग्राफ बनाने का। तो ग्राफ बनाने को आता है अभी आपको। ओके, पोज करके आप लोग बना लेना। और एक बात ध्यान रखना है आपको, ओके स्केल, ओके स्केल लिखना है। स्केल अगर नहीं लिखा तो आपका 1 मार्क जाएगा। तो टेबल बनाएगा, टेबल बना के आपको टेबल लिखना है, टेबल के लिए 2 मार्क। श्योर? लाइक दिस। और ध्यान में रखें आप ये जो इसका इक्वेशन जो है वो लाइन बना के उसका ऊपर आपको लिखना है। समझ में आया? और फाइनल आंसर भी आपको लिखना है।
ये ग्राफ पेपर के बाजू में नीचे या ऊपर मतलब पीछे भी लिखा तो, नहीं तो अपन नॉर्मल पेपर में लिखा तो भी चले। ओके, सो दैट वाज अबाउट इट। ओके, आप बराबर ये पूरा कर लें और प्रैक्टिस। ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैथमेटिक्स। Okay, again and again you practice. So thank you. Have a nice day.